Hello student, today we'll be going to discuss about the double entry system of accounting. Okay, now the double entry system was introduced to the business world by an Italian merchant named Lucas Piccoli in 1494. In his book, he explained the recording of both aspects of a transaction and accounting books of journal and ledger. So in his book he explained the both aspect of a transaction in the accounting books of journal and ledger. Now, though the system of recording business transaction in a systematic manner has originated in Italy, so it was perfected in England and other European countries during the 18th century, and only after industrial revolution many countries have adopted this system today. So after the इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन उसके बाद बहुत सारी कंट्रीज ने जो डबल एंट्री सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग है उसको क्या किया है, अडॉप्ट किया है. ओके, नाउ what do you mean by double entry system? So there are numerous transactions in a business concern. So there are n number of transactions in a business firm. Each transaction when closely analyzed reveals two aspects. So कोई भी एक transaction है उसके क्या होते हैं, two aspect होते हैं. Okay, one aspect will be receiving aspect, okay, or the other aspect will be giving aspect. Okay, now or one is your incoming aspect, okay, and another one is your going aspect. Okay, and another expenses or losses aspect, and in opposite will have income and gain aspect. So uh, this is termed as receiving aspect, incoming aspect, or expenses or losses aspect. It is known as debit aspect of the business, and the other aspect, that is giving aspect, outgoing aspect, or income or gain aspect, this is termed as credit aspect of the business. So these two aspects, namely debit aspect and credit aspect, form the basis of double entry system. Now, double entry system is so named since it records both aspect of a transaction. Both aspect means debit as well as the credit transaction. Okay, in short, the basis principle of this system is that for every debit there must be a corresponding credit of equal amount, and for every credit there must be a corresponding debit of equal amount. So बिजनेस का कोई भी ट्रांजैक्शन है, ठीक है, सो उसमें दो अकाउंट अपीयर हो रहे हैं या मोर देन टू अकाउंट अपीयर हो रहे हैं. सो इफ एक अकाउंट अगर डेबिट है तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो नेक्स्ट अकाउंट है वो इक्वल अमाउंट से क्या होता है, क्रेडिट होगा. इफ फर्स्ट अकाउंट इज क्रेडिट, okay, then there must be a corresponding debit of the equal amount in the transaction. Now, definition of double entry system. So every business transaction has a twofold effect, and that it affect two accounts in opposite direction, like this and this. Okay, so and if a complete record was to be made of each transaction, it would be necessary to debit one account and credit another account. So for example, like if अगर एक अकाउंट है, अगर आपने यहाँ पे फर्स्ट अकाउंट में डेबिट लिखा तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो सेकंड अकाउंट होगा उसमें ये एंट्री जो है वो किस साइड होगी, क्रेडिट साइड होगी. सो
it would be necessary to debit one account and credit another account. So it is this recording of the twofold effect of every transaction that has given rise to the term double entry. इसको अपन क्या बोलते हैं? डबल एंट्री सिस्टम बोलते हैं. Okay, now what are the various characteristics of double entry system, or we can say principles of double entry system? So every business transaction affect two account. Okay, now every business transaction has a twofold effect, that is it affect two accounts simultaneously. One of them is debited and another one is credited. Like for example, bank and cash in a transaction. So cash deposited into bank, so bank is increasing and cash is decreasing, so bank will be debit and cash will be credit. Okay, now recording of both personal and impersonal aspects. So in the bookkeeping, both personal and impersonal aspect of a transactions are recorded in the double entry system. What is personal and impersonal, वो भी अपन आगे पढ़ेंगे. Next characteristics, recording is made according to certain specified rules. Okay, accounting principles अपन ने पढ़े. So there are certain principles, assumptions. Okay, similarly accounting को recording करने के लिए there are certain rules. So on the basis of that rule हम क्या करेंगे, अपनी accounting maintain करेंगे. So in double entry, one account is debited and the other is credited. So there are certain rules of debiting and crediting. So and debit and credit are made on the basis of these rules. So these rules are called as golden rules of accounting. Okay, now preparation of trial balance. Since one account is debited and the other is credited, so total of all debit is always equal to the total of all credit. So with the help of ledger accounts, जब हम ट्रायल बैलेंस पढ़ेंगे तो इन ट्रायल बैलेंस आपकी जो टोटल होगी डेबिट का, that is equals to the total of all credit. Okay, so ट्रायल बैलेंस हेल्प इन अर्थमेटिकल एक्यूरेसी. whatever accounting records जो आपने बनाए हैं उसका अर्थमेटिकल एक्यूरेसी जो है वो with the help of trial balance जो है चेक होता है. So these four are the basic characteristics of double entry system. Now classification of accounts. So in order to keep a proper record of two aspects of a transaction, account may be classified as shown below. So classification of accounts on the basis of modern approach. Modern approach को अपन और जो बोलते हैं that is American अप्रोच, जो अपन ऑलरेडी पढ़ चुके हैं. अमेरिकन अप्रोच में अकाउंट्स जो है वो कौन सी कैटेगरी में डिवाइड होते हैं. सेकेंड वन इज योर ट्रेडिशनल अप्रोच. इट इज ऑल्सो नॉन एज इंग्लिश अप्रोच ऑफ अकाउंटिंग. ओके, नाउ ट्रेडिशनल अप्रोच जो है वो अब अपन डिस्कस कर रहे हैं. मॉडर्न अप्रोच में 5 टाइप्स ऑफ अकाउंट्स होते हैं. 5 टाइप्स ऑफ अकाउंट, दैट इज asset, liability, okay, then we have capital, okay, then expenses and revenue. These are the 5 accounts in modern approach of accounting. Now in traditional approach, the accounts are classified personal account and impersonal accounts. Now impersonal account are further categorized into two parts. One is your real account and another is your nominal account. Now what do you mean by personal accounts?
So the accounts which relates to an individual, individual means the human beings जो है वो आपका क्या होता है, इंडिविजुअल होते हैं. फर्म, okay, company or an institution are called personal account. Like अब कंपनी है, कंपनी जो है वो क्या है, पर्सनल अकाउंट की कैटेगरी में आती है, बट इट इज अ आर्टिफिशियल पर्सन. और इंस्टीट्यूशन, इंस्टीट्यूशन को किसने बनाया है, नॉर्मल ह्यूमन बीइंग ने इंस्टीट्यूशन को बनाया. सो इट इज अ पर्सनल अकाउंट बट आर्टिफिशियल पर्सन है. ठीक है. सो फॉर एग्जाम्पल राम, मोहन, बैंक, capital, drawings, DCM Limited, these all are the example of personal account. Now the rule of personal account is debit the receiver and credit the giver. So on the basis of this rule we will pass the journal entries. Okay, so this is the rule number 1 of अकाउंटिंग, गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग का ये फर्स्ट रूल है. सो डेबिट द पर्सन अकाउंट हु रिसीव समथिंग फ्रॉम द बिजनेस. जो बिजनेस से कोई चीज रिसीव कर रहा है उसके अकाउंट को अपन क्या करेंगे, डेबिट करेंगे. एंड क्रेडिट दैट पर्सन अकाउंट हु गिव्स समथिंग टू द बिजनेस. जो बिजनेस को कुछ दे रहा है उसके अकाउंट को अपन क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे. ओके. Now, example of personal account. Now, paid 20,000 to Hari. So in this particular transaction, Hari जो है, Hari आपका क्या है, creditor है. Now, creditor को अब अमाउंट पे कर रहे हैं, तो यहाँ पे इस ट्रांजैक्शन में दो अकाउंट आ रहे हैं. एक तो आ रहा है हरी और एक आ रहा है कैश. कैश जो है रियल अकाउंट है. ओके, जो अभी तक अपन ने नहीं पढ़ा है, बट अपन ने इसको पढ़ा था मॉडर्न अप्रोच में. मॉडर्न अप्रोच में कैश जो है वो क्या होती है, एसेट होती है. हरी जो आपका क्रेडिटर है, मॉडर्न अप्रोच में जो है वो हरी क्या होता है आपके लिए, लाइबिलिटी होता है. सो पर्सनल अकाउंट रूल, हरी इज रिसीवर. ओके, सो डेबिट द रिसीवर, हरी को क्या करेंगे, डेबिट. एंड बिजनेस से कैश जो है वो क्या हो रहा है, गोज आउट. ओके, तो यहाँ पे एसेट जो है वो क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है. तो कैश को अपन क्या करेंगे, 20,000 से क्रेडिट करेंगे. नाउ इन मॉडर्न अप्रोच, मॉडर्न अप्रोच में हरी और कैश, ओके, कैश एसेट है, सो कैश को क्रेडिट करेंगे, 20,000 से डिक्रीज हो रही है. सिमिलरली हरी आपके लिए क्रेडिटर है, सो क्रेडिटर डिक्रीज हो रहा है, सो डेबिट करेंगे 20,000 से, क्रेडिटर को क्या करेंगे, डेबिट करेंगे. ओके. नाउ सेकेंड एग्जांपल, रिसीव 10,000 फ्रॉम मोहन. मोहन से पैसा रिसीव किया, सो मोहन जो है वो आपके लिए क्या है, डेटर है. अब इस ट्रांजेक्शन में मोहन डेटर आपके लिए एसेट होता है और कैश भी आपके लिए क्या होती है, एसेट होती है. सो इन मॉडर्न अप्रोच, मॉडर्न अप्रोच में कैश और योर सेकेंड अकाउंट इज मोहन, डेटर. सो कैश, कैश अब यहाँ पे क्या हो रही है, 10,000 से कैश इज इंक्रीजिंग, सो 10,000 वी विल राइट इन डेबिट साइड. मोहन, अब डेटर जो है वो क्या हो रहा है, आपको अमाउंट पे कर रहा है, सो 10,000 से डेटर इज डिक्रीजिंग, तो उसको अपन कहाँ लिखेंगे, क्रेडिट साइड. ना अब पर्सनल अकाउंट का रूल क्या बोलता है, डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर. तो मोहन जो है वो आपको क्या कर रहा है, पैसा दे रहा है. ओके, सो मोहन आपको पैसा दे रहा है, तो मोहन को अपन क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे, बिकॉज मोहन इज द गिवर. ओके, फाइन. नाउ objective of personal account. So objective of preparing a personal account is to calculate how much amount a personal account owes to the business, that is how much amount is due to be received from him. So
डेटर से आपको कितना अमाउंट रिसीव करना है वो आपको कहाँ से कैलकुलेट करना पड़ेगा, पर्सनल अकाउंट ऑफ डेटर. Similarly, whereas how much amount is owed to a personal account from the business, that is how much amount is payable to him. Him means यहाँ पे क्रेडिटर की बात हो रही है कि क्रेडिटर को आपको कितना अमाउंट पे करना है. सो विद द हेल्प ऑफ पर्सनल अकाउंट जो है वो कैलकुलेट करेंगे कि डेटर से कितना अमाउंट रिसीव करना है एंड क्रेडिटर को हाउ मच अमाउंट वी हैव टू पे. नाउ categories of personal account. Now personal account are further categorized into three parts. First is your natural personal, second is your artificial person, and third is your representative personal account. So first, natural person, all human being. ओके जितने भी ह्यूमन बीइंग आपको अर्थ पे दिख रहे हैं वो सारे नेचुरल पर्सन की कैटेगरी में आते हैं. फॉर एग्जांपल बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से बिजनेस के डेटर, क्रेडिटर, ऑनर्स कंट्रीब्यूशन, कैपिटल, ओके एंड ड्राइंग्स जो है ये क्या है, नेचुरल पर्सन के एग्जांपल्स हैं. Next is artificial person. So these account do not have physical existence as human being. जैसे human being का physical existence होता है, artificial person का physical existence नहीं होता है, but they work as a personal account. Okay. Now artificial person को जो है वो किसने create किया है, natural person ने बनाया है. बैंक को किसने बनाया है, नेचुरल पर्सन ने बैंक क्रिएट किया है. फॉर एग्जाम्पल रिलायंस इंडस्ट्रीज का जो ऑनर है वो कौन है, अंबानी. सो अंबानी ने रिलायंस इंडस्ट्रीज को क्या किया है, फॉर्म किया है. सो इट इज क्रिएटेड बाय द नेचुरल पर्सन. ओके. नेक्स्ट इज योर रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट. रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट मीन्स इट रिप्रेजेंट ए ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल. इसको रिप्रेजेंट करता है. So it is known as representative personal account. Now expenses और income. Okay, expenses और income जो है वो nominal account की कैटेगरी में आते हैं. So nominal account के आगे प्रीफिक्स और सफिक्स लग जाता है तो वो आपका क्या हो जाता है, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट होता है. ठीक है. लाइक फॉर एग्जांपल आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस. इफ अगर आपके एम्प्लॉय की सैलरी ड्यू है तो सारे एम्प्लॉय की सैलरी ड्यू है, सो वी विल नॉट ओपन ए इंडिविजुअल अकाउंट of all employees. Will cumulatively open a account in the name of outstanding salary. So salary is outstanding of all the employees, so वो outstanding salary account में आएगा. So similarly prepaid expenses, accrued income and unearned income. These four are the example of representative personal account. Okay. Now next account, that is second account. Okay. इम्पर्सनल का फर्स्ट अकाउंट होता है रियल अकाउंट. ओके. सो द अकाउंट्स ऑफ ऑल दोज थिंग्स whose value can be measured in monetary terms and which are the properties of the business. जो business की क्या होती है, properties होती है, are termed as real account, है ना. Example of real account: cash, furniture, machinery, building, गुडविल. ये सारी जो है इसको अपन क्या कर सकते हैं, मॉनेटरी टर्म्स में कैलकुलेट, जिसको कैलकुलेट कर सकते हैं मनी के टर्म्स में. तो ये सारी आपके लिए क्या होती है, रियल अकाउंट के एग्जांपल है. सो टेंजिबल एज वेल एज इनटेंजिबल असेट्स जो होती है. ओके. सो रूल, सेकेंड रूल ऑफ अकाउंटिंग: डेबिट व्हाट कम्स इन. बिजनेस में जो भी आता है वो डेबिट होता है एंड बिजनेस से जो भी जाता है क्रेडिट व्हाट गोज आउट. ओके. सो बिजनेस में जो इनकमिंग हो रही है उसको अपन डेबिट करते हैं और जो आउटगोइंग होती है उसको अपन क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं. सो अकॉर्डिंग टू दिस रूल, whenever any property comes into the business,
it is debited, and when it goes outside the business it is credited. Okay, now for example, अगर business का will talk about a simple account cash, business में पैसा आता है will record in debit side, और business से जो पैसा जाता है उसको अपन क्या करेंगे, credit side record करेंगे. Similarly, if we'll talk about a asset furniture, सो बिजनेस में फर्नीचर आ रहा है तो विल रिकॉर्ड इन डेबिट साइड, और बिजनेस से फर्नीचर जा रहा है तो अपन उसको कहाँ पे रिकॉर्ड करेंगे, क्रेडिट साइड वी विल रिकॉर्ड. ओके, सो ये रियल अकाउंट है. नेक्स्ट एग्जांपल ऑफ रियल अकाउंट, फर्नीचर परचेज फॉर कैश. अब यहाँ पे क्या हो रहा है, मॉडर्न अप्रोच से इफ विल टॉक तो दो अकाउंट आ रहे हैं, एक तो आ रहा है आपका कैश और दूसरा आ रहा है आपका फर्नीचर. ओके, सो मॉडर्न अकाउंट में दोनों असेट है. फर्नीचर इंक्रीज हो रहा है, तो फर्नीचर इंक्रीज हो रहा है तो इंक्रीज इन फर्नीचर डेबिट साइड आएगा, एंड कैश डिक्रीज हो रहा है तो कैश को आप किस साइड लिखोगे, क्रेडिट साइड रिकॉर्ड करोगे. सो in this two are account affected are furniture and cash. So debit what comes in and credit what goes out. तो बिजनेस में आ क्या रहा है, फर्नीचर, तो उसको क्या करेंगे, डेबिट करेंगे, और बिजनेस से जा क्या रहा है, कैश, तो उसको अपन क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे. ओके, नाउ नेक्स्ट एग्जांपल, cash deposited into bank. Okay, so cash deposited into bank, in this transaction दो account है, one is your cash and another is your bank account. Okay, now business में बैंक जो है वो आपका मॉडर्न अप्रोच में क्या होता है, बैंक इज योर असेट, एंड मॉडर्न अप्रोच में कैश जो है वो भी आपके लिए असेट की कैटेगरी में आता है. ओके, सो बैंक में अमाउंट डिपॉजिट हो रहा है तो बैंक जो है वो 10,000 से आप क्या करोगे, डेबिट करेंगे, एंड बिजनेस से 10,000 का कैश आउट हो रहा है तो उसको अपन क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे. नाउ अब आ जाओ आपका जो गोल्डन रूल है रियल अकाउंट का, डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोस आउट. तो बैंक बैंक जो है वो पर्सनल अकाउंट की कैटेगरी में आता है. पर्सनल अकाउंट की कैटेगरी का रूल क्या होता है, डेबिट द रिसीवर, तो बैंक जो है वो पैसा रिसीव कर रहा है, तो उसको अपन यहाँ पे रिकॉर्ड करेंगे. देन कैश जो है वो गोस आउट, बिजनेस से कैश आउट हो रहा है तो आप उसको क्या करोगे, क्रेडिट करोगे. ओके, डन. नाउ last account, that is nominal account. So in nominal account, these accounts include the accounts of all business के expenses and income. ओके, नाउ बिजनेस के जो जितने भी एक्सपेंसेस होते हैं और जो भी आपकी इनकम होती है वो सारे क्या होते हैं, नॉमिनल अकाउंट की कैटेगरी में आते हैं. फॉर एग्जांपल सैलरी पेड, ओके, एक्सपेंसेस है, रेंट पेड एक्सपेंसेस है, डिस्काउंट अलाउड लॉस होता है, बैड डेट लॉस होता है. ओके, कमीशन रिसीव्ड आपके लिए क्या है, इनकम है, इंटरेस्ट रिसीव्ड इनकम है, डिस्काउंट रिसीव्ड ये सारी क्या है, आपकी इनकम है. द रूल फॉर द नॉमिनल अकाउंट, डेबिट द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन. ये आपका गोल्डन रूल है नंबर 3. Okay, so 3 golden rules of accounting. Now example of nominal account. Okay, nominal account का example, salary paid, salary paid है तो salary paid, salary आपका nominal account है, so debit the expenses and losses, तो salary आपके लिए क्या हो रही है, debit हो रही है. Okay, now कैश है ना, बिजनेस से पैसा जो है वो क्या हो रहा है, गोज आउट, तो कैश क्या होता है, क्रेडिट होता है. ओके, नाउ अब आ जाओ कौन से वाले रूल पे, मॉडर्न वाले रूल पे. मॉडर्न वाले रूल में सैलरी, सैलरी जो है वो एक्सपेंसेस की कैटेगरी में आता है, कैश असेट की कैटेगरी में है. ओके, नाउ सैलरी एक्सपेंसेस का रूल क्या होता है, इनकी इंक्रीज इन एक्सपेंसेस, सो 10,000 यहाँ पे क्या हो रहा है, डेबिट. कैश जो है वो बिजनेस से क्या हो रही है, गोज आउट, तो अपन क्या करेंगे, क्रेडिट, है ना. सो डिक्रीज इन असेट को आप क्या करते हैं, क्रेडिट. ओके, नाउ
नेक्स्ट, रेंट रिसीव्ड आपके लिए क्या होती है? इनकम। सो क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन। और बिजनेस में आ क्या रहा है? कैश। तो कैश बिजनेस में आ रहा है। रियल अकाउंट का रूल, डेबिट व्हाट कम्स इन। एंड रेंट आपके लिए क्या है? इनकम है। सो क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स। ओके, नाउ अब आ जाओ आप कौन सा मॉडर्न वाले रूल पे। मॉडर्न वाले में आपका रेंट रेवेन्यू है एंड कैश आपके लिए क्या है? असेट है। सो रेंट रेवेन्यू है, इंक्रीज इन रेवेन्यू किस साइड लिखते हैं? क्रेडिट साइड। असेट जो है वो कैश क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है। सो 10,000 कैश इंक्रीज हो रहा है, किस साइड लिखेंगे? डेबिट साइड। ओके, सो ये आपका क्या है? एग्जाम्पल है किसका? नॉमिनल अकाउंट्स का। ओके, नाउ summary of all rules of debit and credit. ओके, सो अभी जो अपन ने गोल्डन रूल्स पढ़े, पर्सनल अकाउंट का गोल्डन रूल, डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। ओके, रियल अकाउंट का रूल है बिजनेस में डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। नॉमिनल अकाउंट का रूल, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल गेन्स एंड प्रॉफिट। नाउ मॉडर्न अप्रोच के रूल है। मॉडर्न अप्रोच में असेट इंक्रीज होता है, डेबिट करेंगे, और डिक्रीज होता है, क्रेडिट करेंगे। लाइबिलिटी इंक्रीज क्रेडिट होती है, लाइबिलिटी डिक्रीज जो है वो क्या होती है? डेबिट होती है। कैपिटल इंक्रीज क्रेडिट होता है एंड कैपिटल डिक्रीज डेबिट होता है। ओके, रेवेन्यू इंक्रीज इन रेवेन्यू डेबिट साइड रिकॉर्ड, क्रेडिट साइड रिकॉर्ड होता है, एंड डिक्रीज इन रेवेन्यू जो है वो डेबिट साइड रिकॉर्ड होता है। देन एक्सपेंसेस इंक्रीज डेबिट साइड एंड एक्सपेंसेस डिक्रीज जो है वो क्रेडिट साइड रिकॉर्ड होता है। सो विद द हेल्प ऑफ दीज रूल्स आप अकाउंटिंग कर सकते हैं। बुक कीपिंग जो है मॉडर्न अप्रोच से करें या ट्रेडिशनल अप्रोच से करें, इट इज अप टू यू। ओके, सो in the rules for debit and credit, the most important thing जो है that is identification of account. So if identification जो है वो आपका एकदम perfect है, so in that case आप rules apply करेंगे and you will able to pass the journal entries. Okay, done. Okay guys, thank you very much.